Anji, good morning everyone. Today 11th of November 2021, going to revise chapter from the geography, that is climate, as you will be having your CET from that chapter. So we are going to revise this chapter thoroughly again in the class so that revision, rigorous revision, and you can say difficult concept can be discussed properly and you will not be going to face any kind of difficulty. So first of all, the chapter concept is climate. Climate होता क्या है? Climate is particularly weather phenomena or the state of weather over 25 to 30 years in one area that we can consider as a climate. Climate जो है state of weather condition from 20 to 25 year on an average of an area, we can call it as a climate. Weather condition means क्या है? A state of atmosphere for a particular period, for a particular time, or even changes from day to day, from hour to hour, from morning to evening. That is weather. So 1 mark question can be given to you. What is the difference between weather and climate? So weather is the state of atmosphere for particular area for particular time. Fine. Fine. And climate is a set of all the weather conditions observed over 22, 25 या 25 to 30 कुछ भी कह सकते हैं, 25 to 30 years for a particular area. For particular area. So if we can say for short period, it is for the long period. It may changes from hour to hour, from day to day. It is remain same. Fine. Like weather क्या है? मॉर्निंग में क्लाउडी हो जाना, इवनिंग में सनी हो जाना, ठीक है. बट क्लाइमेट क्या है? दैट इज, अब यहाँ का इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है. मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है. सो इज इट ओके? यहाँ तक डाउट किसी को? हाँ जी. फॉर पर्टिकुलर years ही है, years ही है. 20 से 25 सालों के बाद हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है. इज इट ओके बलप्रीत? हाँ जी. नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पैराग्राफ में, देखिए. सो द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज अफेक्टेड बाय, अब देखो किसी भी एरिया का क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट किससे होगा? अफेक्ट किससे होगा? कौन कौन सी चीजों से अफेक्ट होगा? दैट इज, फर्स्ट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ठीक है. प्रेसिपिटेशन को हम लोग सनलाइट भी कह सकते हैं, ठीक है. और क्या पॉइंट बोलेंगे? नो एल्टीट्यूड, हाँ जी. टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, और क्या पॉइंट बोलेंगे हम लोग? एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड, ठीक है. सो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, एल्टीट्यूड,
ये सारे फैक्टर्स जो हैं these are responsible for making the climate of an area. हमारे भारत का क्लाइमेट क्यों क्या ऐसा है मॉनसून टाइप ऑफ? बिकॉज हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है कि हमारा जो साउदर्न सेक्शन है दैट इज नियर द सी कोस्टल एरिया, और ऊपर से तिब्बत प्लेट्यू जो है वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है। तिब्बत प्लेट्यू वहां फ्रोजन एरिया है, ठीक है, वहां से ठंडी हवाएं आती हैं, यहाँ से माइल्ड मतलब आती हैं, और वो हमारे एरिया को, इंडिया के क्लाइमेट को, और वहां से वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस आती है, जेट और एल नीनो इफेक्ट जो है करवाया हुआ मैंने, साउदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट जो है वो इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बनाते हैं। सो मॉनसून type of climate. Monsoon refer to the seasonal reversal in the wind direction during the years. Monsoon is derived from the word Arabic word मौसम. लिख लीजिए, monsoon is the Arabic word derived from मौसम, M-A-U-S-I-M, M-A-U-S-I-M, मौसम, Arabic word. Yes. So the word monsoon is derived from the Arabic word मौसम, which literally means season. ये 1 मार्क का MCQ 110% बनेगा। मैं पक्का ही कह रही हूँ, बिल्कुल पक्का कह रही हूँ। बेटा जी, the word मौसम, monsoon, monsoon is the word taken from the Arabic word मौसम, which means dash, season. ठीक है? So मौसम is a dash language word, and it is given a Hindi word that is मौसम. Is it okay? Is it okay? Put it out. So monsoon refers to the seasonal reversal. Monsoon refers to dash. ठीक है? Wind direction. So it allows the wind direction from the south to north. So the climate of India is described as dash type of climate. Okay. In Asia we found mainly South और South Asia. So समर में मरकरी जो है वो, और देखिए हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो हम लोग क्लाइमेट चैप्टर कर रहे हैं, इंडिया में एक ही टाइम पर, अगर मैं बात करूं 21 जून की, 21 जून इज कंसिडर्ड टू बी एज अ हॉटेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे, ठीक है ना? उस डे की बात करूं तो एक एरिया में टेम्परेचर नियर अबाउट 50 पहुंचा होता है, और दूसरे एरिया में उसी टाइम पर टेम्परेचर जो है वो नियर अबाउट 14 से 15 डिग्री होता है. दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज अवेलेबल वी हैव, ठीक है? एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट इज ऑल्सो अवेलेबल. की विंटर्स की अगर बात करें तो विंटर्स में एक जगह टेम्परेचर जो है वो नियर अबाउट 15-16 डिग्री नॉर्मल इतना होता है, और दूसरी जगह -45 डिग्री पहुंचा होता है, लद्दाख, ठीक है? मिडनाइट में वहां -45 -40 तक टेम्परेचर जो है वो चला जाता है. सो you can write down this. In the summer, mercury varies from one area to another area, like 50 degree in the part of Rajasthan and 20 degree at the same time in Pahalgaon in Jammu Kashmir. ठीक है? 50 डिग्री राजस्थान में शो कर रही है और 20 डिग्री पहलगांव में जम्मू कश्मीर में शो कर रही है, और द्रास में. और विंटर्स की बात करें तो द्रास जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर जो है वो -45 तक चला जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम केरला में उसी टाइम पर टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री होता है.
अगर विंटर समर की बात करूं मैं, अगर समर्स की बात करें, बातें नहीं, समर की बात करें तो राजस्थान में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री, एट सेम टाइम लद्दाख में टेम्परेचर कितना होता है? बोलो, मैं समर्स की बात कर रही हूँ, मैं समर की बात कर रही हूँ, 20 डिग्री, ठीक है, उसी टाइम पर समर में। और अगर विंटर की बात करूं, तो यू कैन से द्रास सेक्टर, वहां पर -45 होता है, जबकि केरला की बात करूं तो वहां पर 20 डिग्री, सेम टाइम पर। This much of variation is there in India at same time. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? So certain places, wide difference between day and night is also being observed. आजकल देख लीजिए, आजकल ही देख लीजिए, मॉर्निंग में आपको थोड़ा कूल फील होता होगा, आफ्टरनून में हॉट होता है, और शाम तक आते आते फिर ठंडा होना। सो डे एंड नाइट के टेम्परेचर में इनफैक्ट इन जालंधर और इन दिस एरिया वी फील देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री का डिफरेंस होता है मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून के बीच में, जिस कारण हमें लगता है कि सुबह हम लोग वुलन्स या ऐसे कोट्स एंड जैकेट्स पहनते हैं, और आफ्टरनून में लगता है कि नहीं, वी कैन नॉट वियर दैट, बिकॉज 15 डिग्री का वेरिएशन है, 15 to 18 डिग्री का वेरिएशन है, जिसके कारण ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं, फीवर्स भी ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। So this is the variation in day and night. It is also being observed in India. Let us look at the precipitation. Precipitation is another name of rainfall. In India, rainfall is also not unique. Matlab, it's different. It is not at same at all the places. Some places it is receiving maximum rainfall like 400 centimeters of rainfall in Mysooram, Cherrapunji, Meghalaya. मैं बता रही हूँ, नोट कर लीजिए. After that you will be not getting it anywhere. For more than 400 centimeters, more than 400 centimeters in Meghalaya, and less than 10 centimeters in Ladakh. Is it okay? So this type of variation we people have. Most part of the country are receiving from June to September. 5 जून से एंटर करता है ना मॉनसून हमारे इंडिया में, और अब बिल्कुल रिट्रीटिंग में चला गया हुआ ना. और नवंबर में एक आधी पंजाब में बारिश होगी, नवंबर में जाते जाते करके जाता है ना. ओनली विंटर में पंजाब एंड तमिलनाडु रिसीव विंटर रेनफॉल. ये क्वेश्चन किया हुआ है ना? है ना? ये चैप्टर जब कराया था तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून था. अब मैं ये चैप्टर रिवाइज करा रही हूँ, तब रीट्रीटिंग ऑफ मॉनसून चल रहा है, मतलब हो गया रिट्रीट, ऑलमोस्ट चला गया, ठीक है, बाहर को जा रहा है, और इसी वीक के अंदर ये निकल जाएगा, और जाते जाते हमारे एरिया में एक आधी बार बारिश करके जाएगा. और विंटर्स में हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रेनफॉल होता है. सो क्लाइमेट कंट्रोल, आपकी बातें आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेक्चर का क्या है, मैम ने तो बोलते ही जाना है. क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फैक्टर्स कौन से हैं? दैट इज एल्टीट्यूड फैक्टर्स which are controlling the climate of one particular area. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 लैटिट्यूड, नंबर 2 altitude, नंबर 3 pressure and wind,
Number 4, distance from the sea. Number 5, ocean currents. Number 6, relief feature / relief, RELIEF, relief / soil. साथ ही सॉइल लिख दो ना, रिलीफ के साथ ही सॉइल लिख दो, पता लग जाएगा रिलीफ का मतलब क्या है। बेटा जी, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड प्रेशर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ और सॉइल। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है? अगर तो सपोज अगर मैं यहाँ अर्थ बना रही हूँ, ये लैटिट्यूड्स है, ये लैटिट्यूड्स है, ठीक है ना? If we are at equator, then temperature is है, temperature is high. अगर हम यहाँ है तो टेम्परेचर क्या है? लो है. तो it means latitude also affect the climate of. उसके बाद आता है एल्टीट्यूड. जितना जितना हम माउंटेन के ऊपर जाते जाएंगे उतना उतना टेम्परेचर जो है वो, ठीक है. एयर प्रेशर क्या होगा? As we move above the altitude, air pressure चलिए. So altitude, latitude, pressure of the winds, distance from the sea, and ocean currents and relief are the major source which are creating the climate of an area. So factor affecting latitude, altitude, pressure of winds. Pressure of winds जो है वो कितने टाइप की हैं? Pressure of winds कितने टाइप की हैं? Pressure of winds are of 3 type, that is surface winds, upper air circulation and western cyclonic disturbance. भूल गए थे ना? भूल गए थे ना? मुझे पता था तुम लोग भूल चुके होगे चैप्टर. बेटा जी बता रही हूँ, प्रेशर ऑफ विंड्स ले आया करो. प्रेशर ऑफ विंड्स जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखवाया था, that is divided into 3 parts. One is surface wind, जो हमारे यहाँ पर आम हमें सरफेस में फील होती है, पेड़ों के पत्ते हिलना या कुछ होना, that is a surface wind. Then is upper air circulation. Then is western cyclonic disturbance or tropical cyclones. Western cyclonic disturbance, upper air circulation. Is it okay? हाँ जी, पहले यहाँ तक का पूरा रिवाइज करिए. आफ्टर दिस आई विल प्रोसीड फर्दर. Fine.